Afternoon, Babu. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, Babu. Good afternoon. Sir. Good afternoon to Babu. Good afternoon, sir. सबको good afternoon. Sir. Then, Good afternoon, sir. good afternoon. Sir, we are learning adjective. Sir, Yeah. sir, Yeah, we are learning. We sir, are learning adjectives and types of adjectives. We know today's class types of adjectives and know separately one by one how to describe the adjectives in different terms. Today we have to learn about types of adjectives. I have written you excuse me, how sir. many types of adjectives. Okay. Adjective, quantity, what quality, number. Then you know how many types of adjectives? 10. 10. Sometimes you sometimes you will see, you can look about the adjectives in different books. Somewhere there are 8 types of adjectives and somewhere there are 10 types of adjectives. But we are learning about 10 types of adjectives, all include in this topic. 10 adjectives, how they differ from each other. Then okay, types of adjectives. या बाबू क्या बोल रहे थे? The kinds of adjective. Sir, मैं ऐसा Kinds कह of रही हूँ, homework adjectives. solution. You can either say what kinds of adjectives or types of adjectives, both are same. Don't worry. सर मैं ऐसा कह रही थी कि आपने मेरा जो सेकंड पेज हो चेक करके भेजा है, फर्स्ट पेज आपने नहीं चेक किया मेरा। हो जाओ तो फर्स्ट सेकंड इंक्लूड उस दोनों में नाम लिखो, 2 पेज अलग अलग भेजते हो बाबू, तो यू हैव टू राइट डाउन योर नेम इन द बोथ ऑफ द पेजेस. इज दैट क्लियर? सर मैंने लिखा था फिर। No बाबू, I didn't see. One page have to include your name and another has not. सर वो वाला आपने होमवर्क दिया था क्लेवरर जो था ना, हाँ, तो जो वो होमवर्क प्रीवियस होमवर्क जो था तुम्हारा क्लेवर एडजेक्टिव, कंपैरेटिव ऑफ एडजेक्टिव जो बोलना, कंपैरिजन वाला दिया गया था बाबू. ठीक है, ठीक है. अब टुडे अभी लेट्स स्टार्ट अबाउट द होमवर्क सॉल्यूशन. होमवर्क सॉल्यूशन कैसे कंपैरिजन जो दिया गया था, पॉजिटिव, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, है ना? देन वी स्टार्ट. ये किसका है? एनी डाउट बाबू? कोई क्वेश्चन, एनी क्वेरी? नो सर। नो सर। नो सर, यू कैन स्टार्ट। या बाबू, थैंक्स. सर वो फाइन का थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था। और नथिंग एल्स. फाइन इज वेरी इजीएस्ट फॉर्म. समझाएंगे क्या? या वो होमवर्क समझाएंगे, अभी होमवर्क ही चल रहे हैं बाबू. ठीक है, तो देन वी लेट्स स्टार्ट अबाउट पॉजिटिव. There are 3 comparisons in adjective: the quality of adjectives and the quantity. Types of adjective have 3 types of comparison. First, positive adjective, positive, and the जो भी आप second लिखवाएंगे उसे हमें लिखना है क्या? comparative. हाँ, बताए थे ना solution कैसे करना, how to solve, how to solution your homework again. Then I am teaching you. Then you write on in a separate page. Is that clear? Positive degree, तुम बगल में बैठो, अपना बनाना। comparative, Superlative. and the last third one is सुपरलेटिव। superlative. We learn with the we learn with fun. Start. We learn with how we learn with fun, sir. The positive degree. Positive degree, that means original form of the adjective. Positive, that means original. Positive, that means original. Original बोले तो क्या? Original. हाँ, original types of adjective. Original adjective या base adjective या हाँ base adjective या simple adjective. All are same. Simple adjective, base adjective, original adjective. Any doubt? No, sir. You can continue. Continue. Okay, so positive degree and comparative degree and superlative degree. You can see पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है. पॉजिटिव डिग्री, अब कोई भी हम क्वालिटी बेस्ड ले लिए या क्वांटिटी बेस्ड ले लिए, तो कोई भी एडजेक्टिव का कोई टाइप है यहाँ पर. जैसे आपका एग्जांपल जो दिया था होमवर्क में, हम देखते हैं यहाँ पर पहले क्या किया जा रहा है, होमवर्क सॉल्यूशन.
ठीक है, तो होमवर्क सॉल्यूशन में पहला क्वेश्चन है सभी का था। हाँ ठीक है, पहला देखो अब वो सभी होमवर्क का सॉल्यूशन पहले हमने बोला कि होमवर्क सॉल्यूशन क्या जा रहा है, ये ओरिजिनल फॉर्म पॉजिटिव डिग्री में आएगा। अभी हमने इसे पढ़ाया नहीं है, सिर्फ सिखा रहा हूं मैं इसे। हाँ, फिर उसके बाद चलेंगे, अभी इसका बहुत बड़ा काम है। ठीक है, तो हम आते हैं, वो देखते हैं कहाँ हमारा होमवर्क। सभी को होगा पहला क्वेश्चन। सर फर्स्ट बिग है। फर्स्ट बिग है, ठीक है, बताइए। यस सर। पहला बिग है, बिगेस्ट पर बिग देखिए बिगेस्ट लिसन टू मी, लिसन टू मी फर्स्ट, लिसन टू मी बाबू। कंपैरेटिव करने के लिए आपको याद होना चाहिए कि कंपैरेटिव में प्लस ईआर क्या लगाना होगा बाबू, प्लस। ठीक है, ध्यान देना बाबू। समटाइम्स वी हैव टू ऐड IER, समटाइम्स वी हैव टू ऐड IER। ठीक है, तो कभी कभी हमें IER भी लगाना होता है, इसको ध्यान देना। कभी कभी समटाइम्स भी लगाना पड़ता है। टाइनी हाँ। टाइनी सर इसे लिखना नहीं है ना। टाइनी में ये लगता है। वो हम समझा, हल्ला नहीं बाबू, हल्ला नहीं। सर इसे लिखना नहीं है ना। ये उतारना है, बताए थे कि सॉल्यूशन कॉपी एक अलग पेज में उतारेंगे। ठीक है ना, ये उतारना है बाबू, इसे लिखना है। सुपरलेटिव डिग्री में क्या करते हैं बाबू, इसमें सबसे पहले फेयर हम में नहीं करना है ना। सुपर फेयर नहीं, फेयर नहीं जाएगा, ये रफ है। ठीक है, EST ईएसटी क्या करते होता हैं। है, EST क्या करते हैं, होमवर्क किया EST उसमें भी कॉपी में करना है। ये आपके लिए रफ कॉपी होना चाहिए। सर हम लोग ये मोर और मोस्ट तो कभी कभी लगाते हैं अभी ना। रुको ना बाबू, अभी हम बता, हमने बताया नहीं है। ठीक है, ठीक है, जैसे एग्जांपल भी हम देंगे यहाँ पर। हैप्पी दिए हैं कि नहीं बनाने के लिए, बरगद हैप्पी दिया हुआ है, हैप्पियर एंड हैप्पीएस्ट। कहीं कहीं हमें क्या करना होता है, आई भी ऐड करना होता है। तो कंडीशन क्या होता है, कंडीशन क्या होता है, आई आता नहीं है, इस बाई को हटा दिया जाता है, रिमूव बाई एंड ऐड आई। तो आई कभी भी लगता है तो बाई के जगह पर लगता है। ठीक है ना, तो हम बताएंगे कैसे। और कभी कभी समटाइम्स हम क्या करते हैं कि एडजेक्टिव के लिए हम मोर का प्रयोग करते हैं, मोर प्लस एडजेक्टिव, और यहाँ पर मोस्ट प्लस, है ना, मोस्ट प्लस एडजेक्टिव। ठीक है, इस पर का दो तरीका है यहाँ, और नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। दो तरीका है, एक तरीका, दो तरीका, देयर आर टू वेज। हाँ, तो यहाँ पर कौन सा आते हैं जिसमें सेलेबल, मोर देन वन सेलेबल, मोर देन वन सेलेबल। ठीक है, तो मोर देन वन सेलेबल जब होता है एडजेक्टिव में, हैविंग मोर देन ऐसे लिख सकते हैं, हैविंग मोर देन वन सेलेबल, एक सेलेबल से ज्यादा सेलेबल वाले जो है ना एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे हाँ, एग्जांपल सेलेबल क्या होता है, जैसे यहाँ जिसको हम स्पेलिंग पढ़ने समय सेलेबल टूटता है ना, वो अलग अलग वर्ड होता है। हैंड और इधर सम, हैंड अलग हो गया, सम, और एक साथ लिखेंगे तो हैंडसम। हैंडसम एडजेक्टिव है, तो ये बड़ा हो। जैसे ब्यूटी, ब्यूटी और फिर फुल, तो ये हो गया ब्यूटी, ये हो गया फुल, डबल सेलेबल वाले वर्ड। ठीक है, इसी प्रकार है ना। ब्यूटी की स्पेलिंग तो वाई आती है, तो अपने भाई हुआ ना, वो ब्यूटी तो भाई होता है, तो जब उसके बाद ऐड होता है सफिक्स प्रीफिक्स, हमने कोई भी चीज सिखाया है ना, एडिंग ऑफ सफिक्स एंड प्रीफिक्स, तो जब सफिक्स लगता है तो बाई जो लास्ट में होता है वो आई में चेंज हो जाता है। यहाँ भी लिखा हुआ है, हम यहाँ पर इसलिए पहले लिखे थे। ये जो बाई है, जब हम इसमें ये जो बाद में जुड़ता है उसे सफिक्स कहा जाता है। यदि कुछ हम ऐड कर रहे हैं उसमें सफिक्स को, ER हो या EST, तो उस बाई को हम आई में चेंज कर देते हैं। सिर्फ इसमें नहीं, सब में ये चीज लागू होता है। ठीक है, बिग है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर बाबू, अब यहाँ पर कुछ नहीं होगा। ये जो पॉजिटिव डिग्री होता है, पॉजिटिव डिग्री होता है, जो यहाँ एडजेक्टिव आता है, पॉजिटिव एज के बीच में होता है या सो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री रहता है। पॉजिटिव डिग्री में कोई कंजक्शन लगता है सर, तो हाँ, पॉजिटिव डिग्री में कंजक्शन लगता है। पहला यहाँ पर दिया हुआ है, एज पॉजिटिव डिग्री में ही लगता है, या सो एज पॉजिटिव डिग्री में ही लगता है। इन द केस ऑफ कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री में देन का प्रयोग किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, कंपैरेटिव डिग्री प्लस कौन सा कंजक्शन आता है, देन का प्रयोग हम करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में देन कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन। सुपरलेटिव डिग्री का बात करें तो सुपरलेटिव डिग्री में द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, इसमें सुपरलेटिव डिग्री में द का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन।
कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन, और यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री में सिर्फ आएगा एडजेक्टिव एज। जैसे हम एज का एग्जांपल दे सकते हैं बाबू, जैसे ही इज एज फैट एज, he is as fast as मोना, ठीक है, वह उतना ही मोटा है जितना मोना। एज फैट का प्रयोग ये आपका पॉजिटिव डिग्री में है, लेकिन इसको कंपैरेटिव डिग्री में करेंगे तो देखो चेंज होगा। सेंटेंस को लिखना He is- हाँ ही इज, देखो कंपैरेटिव डिग्री में कर रहे हैं, ही इज ये पॉजिटिव डिग्री में हो गया, और ये Clear, हम ma'am. कंपैरेटिव, रफ बाबू रफ 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 रफ, ही इज, है ना, ही इज फैटर देन, Sir, we have to write this one. यस बाबू, ही इज फैटर देन मोना, हम यहाँ समझा रहे हैं बाबू, ये पॉजिटिव डिग्री में हो गया पीडी, ये कंपैरेटिव डिग्री में हो गया सीडी। यहाँ देखिए देन का प्रयोग है तो कंपैरेटिव डिग्री, एज का प्रयोग है तो पॉजिटिव डिग्री। इसी को हम तीसरा करते हैं कि वह मोटा है, वो सबसे मोटा है, ही इज द फैटेस्ट, ही इज द फैटेस्ट बॉय, ही इज द फैटेस्ट बॉय इन हिज क्लास, इन हिज क्लास। तो यहाँ द फाइटेस्ट यहाँ पर जो आ रहा है ये सुपरलेटिव डिग्री हुआ, ये सुपरलेटिव डिग्री में आ गया। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस जब आएंगे तो आपको देखना होगा कि हमें यहाँ फैट है, तो जैसे आएगा ये फैट है, ये पॉजिटिव डिग्री में है, तो कंपैरेटिव बनाएंगे तो फैट का कंपैरेटिव, फैट का कंपैरेटिव, फैट का कंपैरेटिव बाबू, फैट का कंपैरेटिव, फाइटर, फाइटर के बाद हाँ कंपैरेटिव डिग्री में सर ने बताया देन लगता है, तो जैसे ही फाइटर आएगा तो उसके बाद देन का प्रयोग हम करेंगे, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री में द का प्रयोग होता है, द फाइटेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री के लिए, क्योंकि क्लास में वो सबसे ज्यादा है, तो हम बताएंगे कि कंपैरेटिव 2 के बीच में होता है और सुपरलेटिव मोर देन 2 के लिए किया जाता है कंपेयर। तो अभी हमने समझा, फिलहाल जो बेसिक पॉइंट्स को हमने समझा कि हाँ पॉजिटिव डिग्री जो होता है वो एज सो एज के बीच में रह सकता है, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, और कंपैरेटिव डिग्री में ER लगता है, IER लगता है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमें देन का भी प्रयोग करना होता है, ये हमें पता चला। सुपरलेटिव डिग्री में क्या कहा गया कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले THE द का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि एग्जाम्पल आपको तीनों यहाँ दिया हुआ है। अब हम आपको उतारने के लिए 1 मिनट का समय देते हैं, क्लियर है? यस सर। ठीक, तो होमवर्क हो गया उतारने के समय में आपको जब प्रॉब्लम सर, होगा तो बोलिएगा। सर होमवर्क सॉल्यूशन हो गया। समय टाइम देखकर 1 मिनट दिए हैं तो सिर्फ उतारना चाहिए, उस समय उसमें कुछ पूछना नहीं चाहिए। दोबारा जब आप उतार लोगे तो क्वेश्चन सर करना। ये होमवर्क हो गया, होमवर्क सॉल्यूशन। अच्छा रफ वर्क होगा उसके बाद ही ना सॉल्यूशन होगा। मैथ्स बनाते हो तो साइड में रफ करते हो कि नहीं, प्लस नहीं मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ओके करते हैं। मिटा दें। यस सर मिटा दो। सर यस सर। नो सर। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। तो आप बोले कि हमको लिखने में दिक्कत होता है, तो वॉइस से क्या जरूरत है? यस सर। अच्छा रिकॉर्डिंग चालू है? नहीं होता अभिनव बाबू वीडियो ऑन कीजिए, प्रतीक ऑन करो बाबू, कार्तिक, भूमि बाबू ऑन कीजिए, ज्योति शैतान ऑन कीजिए बाबू। सर मैं अपने सर मैं भूमि के सर मोबाइल सबको हैंड डाउन करने करिए ना। पापा का मेरा पापा का मोबाइल ना मैं पापा के मोबाइल से करती हूँ, तो दिया गया मम्मी है के मोबाइल से करती, तो इसीलिए पापा का मोबाइल खराब हो गया, थोड़ा सा नेटवर्क नहीं है। डोंट यूज योर वर्ड्स। सर सबको हैंड्स डाउन करने को ना, मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है। मंत्रा भी देना है तो सब में आपकी मंत्रा भी देना। सर हैंड्स डाउन करने कह दो ना सबको। हैंड्स डाउन। क्लियर है? वो सबने उतार लिया? हैव यू कंप्लीटेड? नो यस सर, यस सर, यस सर। नो सर।
कोई भी रेजर नहीं किया। सर देखो ना, तन्नू बार बार हैंड रेज कर रही है। Aryan Babu, what are you doing? Aryan, your video is blurring, not seen. Okay, Babu. नो ठीक है? सर। यस सर। यस सर। नो सर। ठीक है सर, इसका स्क्रीनशॉट उतारेगा। सर देखो ना, सब लोग सर हैंड छोड़ रेज दीजिए कर आप। रहे हैं। सर बस नीचे वाला लास्ट है। सर देखो ना। सर रहने दीजिए अब। सर मेरा नेटवर्क इशू होता है। देखिए पॉजिटिव डिग्री में पहला बाबू ने कहा कि बिग है सर, क्लियर है। तो होमवर्क सॉल्यूशन पहला बिग दिया हुआ था, तो कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा बाबू? बिगर। सवाल ये है कि यदि लास्ट में कॉन्सोनेंट है, लास्ट में यदि कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के पहले आपको कोई वॉवेल मिलता है, कॉन्सोनेंट के पहले उतारना है, किसे लिखना ही नहीं है। पहले कोई, तो ये कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। आपको बहुत सारे ऐसे केसेस भी मिलेंगे, यदि लास्ट का वर्ड कॉन्सोनेंट है, लास्ट का वर्ड कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के पहले कोई वॉवेल आ जाता है, कॉन्सोनेंट के पहले कोई वॉवेल आ जाता है, कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। और आगे भी आपको दिखेगा बिग, बिगर, बिगेस्ट। ठीक है, आगे भी कोई वर्ड आएंगे तो बताएंगे। यहाँ अभी आप कौन सा बाबू? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग। हाँ जी है, लेकिन उसके पहले कॉन्सोनेंट ही है, तो स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। स्ट्रॉन्गर। देखिए सेलेबुल का बात कर रहे थे बाबू कि सर सेलेबुल, डबल सेलेबुल क्या, व्हाट इज द सेलेबुल? सेलेबुल इज ए पार्ट ऑफ अ वर्ड। सेलेबुल इज द पार्ट ऑफ अ वर्ड। किसी भी एक वर्ड का एक पार्ट जो टूटता है ना, इन व्हाइल यू आर प्रोनाउंसिएशन, वहां पर जो किया जाता है ना, तो उसको जब हम पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग में, स्ट्रॉन्ग एक बार में पढ़ा जा रहा है इन वन टोन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गेस्ट। स्ट्रॉन्गेस्ट सर। Large, लार्जर। लार्ज। सर लार्ज। large, small, very सर लार्जर। लार्जर। लार्जर, लार्जेस्ट। and लार्जेस्ट। और नंबर सर गुड 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 बेटर बेस्ट। गुड बेटर बेस्ट। बेटर बेस्ट। बेटर बेस्ट। कुछ गुड बेटर बेस्ट। बेटर बेस्ट। some adjectives have हम नहीं निकालना तो होता ही है। नाम तुम लिख चुका है सर। गुड। foreign, हाँ वो यहाँ पता क्या बेस्ट। सर आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है। बेटर बेस्ट। कंपैरिजन जो होता है वो इरेगुलर में होता है, ठीक है ना। तो इरेगुलर में जैसे we have to write this good, better and best. Sir, we have to write this one again. हम जो यहाँ के लिए बताना। in the separate page. Okay, sir, but we have to write in this one again. Good, better, bad, bad, was, तो लेकिन आंसर सही होगा तो फिर लिखने की क्या जरूरत है वापस? again and again you have to practice one. डीप लिखना है। सर डीप डीप। Bad का, evil का Sir, और we have to write this. यस बाबू, तीन चीज बता रहे हूँ, बैड, एविल, इल। बैड का भी वर्स, इल का भी, फेयर में करना है। हाँ फेयर करना है। सर डीप डीप। सर डीप। सर ये जो आप होमवर्क समझा रहे हो उसे फेयर करना है। हाँ, भी समझा देते हैं, उनको फेयर में डाल। सर आपकी आवाज रुक जाती है जब कोई बोलता है। कच्चा आ रही। सर डार्क डार्क डार्क। सर मैंने तो इसे एक बार कर लिया है, ये जो आप लिख पा रहे हैं उसको मैं रफ में लिख रही हूँ।
Yes, sir. The fine. Fine. फाइन में बढ़िया Finer. था, फाइन मीन्स खूबसूरत, फाइन मीन्स सही। It's all Finer. about- सर फाइन मीन तो ठीक होता है ना। Yes, sir. बढ़िया अच्छा होता है। There are many how to spell the word finer, finest. Clever. Coronavirus. Cleverest. Clever. Clever. Clever, sir, Cleverest. clever, Beautiful. The beautiful. beautiful आ गया बाबू, beautiful More तो जान beautiful. More More beautiful. beautiful. Most beautiful. More beautiful. Most beautiful. most beautiful. Smart. 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 होता है सर स्मार्ट। फाइनर होगा या फाइनियर होगा? Fine, finer, E ऑलरेडी दिया हुआ है तो सिर्फ R नहीं जुड़ेगा बाबू। सर ई के आगे आई नहीं लगाने। इसके आगे आई नहीं लगाना है। ये फाइन हुआ ना बाबू, फाइन हुआ ना, आपको बताया गया फाइन, ई दिया हुआ है तो डबल ई फाइनियर में ई के आगे आई नहीं लगाना है। तो सर वो बोल रहे हैं कि आई नहीं लगेगा क्या? क्यों लगाएंगे बाबू, यहाँ बाई है, आई क्यों चेंज होता है, आई क्यों चेंज होता है बाई के लिए, की वजह से वाई वाई की वजह से आई चेंज होता है। ये आपने देखा पहले लिख दिया था पहले। स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। टेस्ट, चलो मिटा देते हैं हम, है ना। नो सर उतारने दीजिए। सर रुकिए। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। सर वो इस साइड में जो लिखा है सर ये तो हम लोग पहले से लिख के सेंड कर दिए हैं आपको। आपने होमवर्क भेजा है, सॉल्यूशन नहीं। ये होमवर्क सॉल्यूशन है। आई राइट अगेन सॉल्यूशन कॉपी, नॉट होमवर्क कॉपी। क्लियर अब? तो मैं पहले ही उतार लिया सारा। सर इरेज इट। ओके बाबू, चल कितना अभी कितना बच रहा है? सर रुक जाइए। सर 40 सर 40 बच्चे। सर इसके बाद 11 12 बताओ। सर प्लीज टाइम। सर टॉल है अगला। टॉल टॉलेस्ट। सर रुक जाइए। नेक्स्ट शॉर्टेस्ट। टाइनियर। सर वाई हट जाएगा, आई ई आर लग जाएगा। सर कंपैरेटिव डिग्री में टाइनेस्ट क्यों लिखे हैं? सर लॉन्ग। लॉन्गर लॉन्गेस्ट। सर एक बचा है 15। लॉन्ग। These are 15. नहीं हो गया ना? सर लॉन्ग। सर रुकिए। लॉन्ग बचा है सर। लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट। सर अब 2 मिनट रुक जाइए। और नो सर बस इतने ही थे, 15 ही थे। यस सर इतने ही थे, 15 ही थे बस इतने ही थे। सर पसंद है। सर सबको म्यूट कर दीजिए। थिन थिक, ये देखो बनाओ सर थिन थिक। बनाओ अभी उसमें। थिनर, थिनेस्ट, लिखना है। थिकर, थिकेस्ट। ठीक है। पता है ना थिक है,
thicker, thickest. सर होमवर्क में भी बनाना है वो? नहीं अभी डालो ना, अभी करवा रहे हैं ना। सर होमवर्क में नहीं था। होमवर्क में नहीं था, अभी बनाने के लिए। डू इट नाउ। Done sir. Done sir. क्या बनाया वो? सर थिनर क्या और लेना? थिनेस्ट। Thinnest. ना यदि के पहले वॉवेल रहेगा तो उसको डबल कर देंगे, ठीक है? तो थिनर क्या हो गया? सर थिनेस्ट। सर थिनेस्ट। Sir, thickness. सर थिकेस्ट। Sir, thickest. Thickest. Thicker. हो गया ना? Yes, sir. करना पड़ेगा। क्या होता ये सर। Sir, अब types of adjective पढ़ा। मारे मारे Done. सर ग्रुप में सेंड कर दीजिए। सर थोड़ा स्क्रीन शेयर कर दीजिए। स्क्रीन शेयर हो जाएगा, स्क्रीन शेयर हो जाएगा, ठीक है? सर रुक जाइए। स्क्रीन शेयर कर दीजिए। ये हो गया ना? थिन, थिनर, थिनेस्ट, थिक, थिकर, थिकेस्ट, ठीक है? थिनी 8 और बढ़ाएं? थिनर नेस्ट। नो सर बढ़ने चाहिए। हैप्पी मिला। लॉन्ग लॉन्गर सर दे दीजिए डर्ट लिखो ना, सर, डर्ट लिखो। ओल्ड डर्ट, डर्टी मीन्स गंदा, ये होता है। dirtiest. हाँ, और बस 20 तक करवाएंगे। ग्रेट ग्रेट। ब्रेव लिखो। सर Braver, bravest. ब्रेव नहीं लिखो, वाइज। होमवर्क है। नहीं नहीं, अभी करना है। डू इट नाउ। Wiser, wisest. सर जो आप एक्स्ट्रा करवा रहे हैं ये वाला होमवर्क का, उसे हमें फेयर में करना है क्या? ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। क्या सर वो? फेयर में करना है Yes. क्या सर? एडजेक्टिव्स में चले गया। सर स्क्रीन शेयर कर दीजिए। इधर तो नहीं हो रहा स्क्रीन से। सर लास्ट नंबर क्या लिखे हैं? हाउ द ग्रेट लिजर्ड। हो रहा है ना सबका? सब लिख पा रहे हो ना? क्या दिक्कत है आज भी? लिख पा रहे हैं। ये है। सर आज लिख पा रहे हैं। लिखने में दिक्कत होती है। शॉर्ट टाइम है, वी हैव टू गेट द। सर मुझे तो कभी दिक्कत नहीं होती। कभी दिक्कत नहीं होती है। मुझको नहीं होता। नो सर। फटाफट लिखेंगे। लास्ट संडे से सब लोग कंप्लेन कर रहे हैं, दिखता नहीं है, दिखते नहीं है। धीरे धीरे हाथ चलाते हो, इधर उधर ध्यान रख। तो मैं धीरे धीरे मैं तो एकदम फटाफट फटाफट लिखते रहता हूँ। मैं भी। हो गया। राइट प्लीज सर। हमेशा साइड प्लीज, साइड सर प्लीज। आपकी आवाज रुक रुक कर आ रही है, कट जाती है बीच बीच में। अब नहीं कटेगी। यस सर। सर आई हैव डन।
Yes, sir. Sir, I have also done. अपना मेन दिए थे तो अब वो इसका हुआ था डर्टी दिया Yes, sir. सर क्या था? डर्टी दिया हाँ। था, वाइज एक और याद आ रहा है, प्रीटी। प्रीटी। हाँ। Sir, पर dirty के बाद लिख दे, क्या? ग्रेड के नीचे प्रीटी लिख दे। dirty के पास बाद wise दिए थे. वाइज वो कहाँ हटा दिए ना, क्या लिखे? वाइज सर वाइज मैंने लिख लिया। ग्रेट क्या लिखे? अच्छा ठीक है, प्रीटी को अभी अंडरलाइन कर देते हैं, सर्किल कर देते हैं। वाइज दिया हुआ था और सर ग्रेट दिया था और क्या था? Great. ग्रेड दिया हुआ था। Sir. हो गया सर grade? मैं ग्रेड के नीचे प्रीटी लिखी हूँ। ठीक है, ओके, बहुत अच्छा है। डर्टी को बाई वाला देना था ना, मैंने भी great के नीचे बाई वाला breed देना। देखो of इसमें क्या है ना, इसमें डबल टी ऑलरेडी दिया हुआ है। इसमें देखो बाई वाला में देखो डर्टी, डर्टीएस्ट, डर्टियर और आई हो गया। जिसको प्रॉब्लम था आई वाला में कि आई कैसे होगा सर, तो बाई रहने पर आई चेंज होता है। और डर्टीएस्ट वाइज वाला करा देते हैं। वाइज देखो इसमें ई ऑलरेडी दिया हुआ है, ई दिया हुआ है तो सिर्फ आर ऐड कर देना है। वाइजर, वाइजेस्ट। एक स्टोरी है, एक स्टोरी है, क्या बोले थे कि हाँ एक स्टोरी है और उसका क्वेश्चन एक आया था, हु वाज वाइजर, हु वाज वाइजर। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया है हु वाज वाइजर, दैट मीन्स यहाँ पर कोई दो, या तो दो आदमी होगा, दो पर्सन्स होंगे, या यहाँ पर दो कोई जानवर होगा और पूछा कि हु वाज वाइजर, तो यानी कि वो दो में से कौन ज्यादा बुद्धिमान था। वहां दो जानवर या दो व्यक्ति, कौन ज्यादा बुद्धिमान था। और यह कहता है, क्वेश्चन दिया हुआ था क्रोकोडाइल एंड सेकंड दिया हुआ था द फॉक्स। फॉक्स ज्यादा बुद्धिमान था या क्रोकोडाइल बुद्धिमान था? लोमड़ी सबसे ज्यादा होशियार है. अरे वो सबसे ज्यादा होशियार होता है, है। वो सबसे ज्यादा होशियार होता है, लेकिन आंसर होता है द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल ज्यादा वाइजर था। कैसे कोडाइल कैसे? 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 अभी तो इसमें तो कहानी पढ़ना पड़ेगा और कहानी तो अभी हमें पढ़ना नहीं है। ठीक सर है, अब कहानी पढ़ाई नहीं तो ऐसे पूछ रहे। लिटरेचर पढ़ा दीजिए. सर गलत है ये। अब इसमें कहानी को ऐड करना है कि कैसे अब तुम्हारा प्रश्न, हमारा प्रश्न ये है, कहानी नहीं तुम लोगों को पहले ये सोचना है कि अब इस क्वेश्चन दिए थे सर कंपैरेटिव डिग्री से, हु वाज वाइजर, बुद्धिमान, सब ज्यादा बुद्धिमान कौन था। हु वाज वाइज का मतलब हो गया कि बुद्धिमान कौन था, लेकिन हु वाज वाइजर दे दिए तो बुद्धिमान ज्यादा कौन था, क्रोकोडाइल और द फॉक्स। बच्चों ने जवाब, हम जानते थे कि वो फॉक्स देगा, क्योंकि वो जानते हैं कि फॉक्स क्लेवर होता है, सर धूर्त क्लेवर होता और है। बहुत चालाक. स्टोरी चिपका दी तब ना क्रोकोडाइल हुआ। अगर आप ऐसे ही पूछते बिना स्टोरी के तो करेक्ट आंसर क्या था? फॉक्स। तो हमने स्टोरी तो नहीं पढ़ा है तो करेक्ट One आंसर second, one second, silence, विकाम। तो यहाँ पर ओवर्स वाइजर में द फॉक्स का, द फॉक्स क्लेवर होता है, ये हम जानते हैं, क्लेवर होता है। चालाक को धूर्त कहा जाता है, दिमागदार भी बुद्धिमान होता नहीं। है. चालाक आदमी, चालाक व्यक्ति या जानवर बुद्धिमान नहीं होता है। क्लेवर इज डिफरेंट फ्रॉम, क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम वाइज। Wise is alter word. Wise that means have the powerful and strong mind. And यहाँ चालाक का मतलब वो तो चालाकी करता है, सर. है ना, वो अलग चीज है। तो यहाँ पर हमने वाइज पूछा तो बुद्धिमान यहाँ पर क्रोकोडाइल था। वो स्टोरी आप समझिएगा और हमें बाद में बताइएगा। ठीक है, डर्टीएस्ट और प्रीटी का लास्ट में ग्रेट है तो ग्रेटर कर देते हैं। ग्रेट में यार लगाएंगे, ग्रेटर और ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट से देखिए बाबू एक क्वेश्चन बनता है। हाँ, ग्रेटेस्ट से देखिए क्वेश्चन क्या बनता है बाबू, हु वाज ग्रेटर, हु वाज ग्रेटर। क्वेश्चन यहाँ है, हु वाज ग्रेटर,
ग्रेटर लार्ज, वो तो लार्ज में आएगा ना, वो ग्रेटर मीन्स महान के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ बड़ा नहीं। सर ऑप्शन दे रहे हैं वो, ऑप्शन देंगे तो फिर उसमें भी हम छिपा के ऑप्शन देंगे। सर नहीं दिख रहा। सर आप छुपा क्यों रहे हो सर? पर्दा तो कभी ना कभी खुलेगा, तो सर अभी दिखा दो खोल के। यस सर, अभी दिखा दो। सर छुप छुप के जवाब देना पड़ेगा अभी। बात भी एक ही है। हु वाज ग्रेटर बताओ अब। द ग्रेट अशोका। ग्रेट अशोका। ग्रेट अशोका। सर ऑब्वियसली अकबर द ग्रेट इन सोशल रिफॉर्मर। सर सोशल रिफॉर्मर। अशोका। लेट मी ग्रेट। सर अकबर द ग्रेट कौन है ये? साइलेंट ग्रेट अशोका। हु वाज ग्रेटर। अभी हम अकबर जानवर the के बारे में Great। पूछ दिए तो उसका नेचर तुम जान गए थे, तो उसका नेचर जानते थे, क्लेवर होता है, हमने क्लेवर नहीं पूछा था। ऐसे भी आप लोग सभी लोग गलत हो गए थे 90%। वहां पर वाइज था वो क्रोकोडाइल, वो कहानी पढ़ेंगे तो जानेंगे। जैसे बच्चों ने कहा अभी हमें कि सर हमें आप पहले कहानी बताते तब ना क्वेश्चन करते। अब इसमें सर हमें अकबर द कहानी ग्रेट। बताने, लिसन टू मी। तो यहाँ पर ग्रेट अशोका के बारे में जानेंगे और अकबर द ग्रेट के बारे में जानेंगे, तब ना हम पता कर पाएंगे कि महान ये ज्यादा, दोनों महान है, दोनों महान है तभी तो। एक्चुअली अशोका था सर पहले। अकबर बहुत दिमाग चलाता है। नो सर, अशोका हमारा मेरे बात बदला था। सर वो तो ज्यादा अच्छा है। बदला भारत अकबर होगा। सबसे ज्यादा दिमाग। ये क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों पर छोड़ते हैं, दो क्वेश्चन दिए थे। सर अकबर अकबर। मैं बदला साइलेंट बाबू, साइलेंट। नहीं तो सबका बंद कर देंगे, साइलेंट। सर बोला ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। यस सर। प्रीति का प्रीटियर होगा बाबू, जैसे बाई है तो आई चेंज हो जाएगा, प्रीटियर और प्रीटिएस्ट हो गया सबका। हाँ सर। ब्रेव अब ब्रेव नहीं, अब रहने दो, बाद में देखेंगे। ब्रेव नहीं है सर। ब्रेव हटा दी। ब्रेव था सर। ग्रेट का नेटवर्क कनेक्शन वो दिखा। ब्रेव हटा दिया गया था वो। सर ट्रस्टवर्दी। ट्रस्टवर्दी वो बड़ा हो गया। अब जैसे हम यहाँ पर बोलेंगे बाबू, अब जैसे वो भी है तो फेथफुल भी तो बोल सकते हैं ना, फेथफुल। तो फेथफुल बोल रहे हैं तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा क्या, मोर एंड मोस्ट। मोर फेथफुल और मोस्ट फेथफुल, ठीक है। सर ब्लर दिख रहा है। अब सही है बाबू। सर ब्लर दिख रहा है। एडिटिव पर अब बोलना नहीं है, सिर्फ लिखना है। अब जो बोलते रहेगा हम मिटा देंगे, फिर अपना लिखने पर ध्यान दो। एडजेक्टिव्स सर ब्लर दिख रहा तो आपने लिखा दिया था। सर इंटरनेट भी बता रहा है सर कि अकबर इज सर आपने सर अकबर ज्यादा ग्रेट है। सर ब्लर आ रहा है। सर वी हैव टू राइट दिस। यस बाबू, स्टार्ट कर दो लिखना। बोलने वाला को बोलने दो, जो बोल रहा है मिट जाएगा तो बोलते रहेंगे। लिखा तो क्या, अगेन यू राइट। आई सेड यू हैव टू राइट अगेन। वापस लिखते हैं। सर मैं न्यू Adjectives ईयर are स्टार्ट the करूंगी एडजेक्टिव से। सर टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। Adjectives are used to describe and explain नहीं चल रहा सर साइड। सर आधे घंटे बाद आपको जाना पड़ेगा। नहीं, तुम्हारे घर आना पड़ेगा। सर 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 बोलिए बाबू। सर मैं बोल रही थी कि सर प्रिंस का प्लूरल क्या होता है? क्या चीज का? सर प्रिंस का होता है प्रिंस। देखो बता रहे हैं तो ध्यान से सुनो। प्रश्न करते हो
प्रश्न करने के बाद साइलेंट हो जाओ एक अच्छे बच्चे की तरह, ठीक है। प्रिंस, प्रिंस को हम दो इसको कैटेगरी में बांट दिए। एक यहाँ हमने लिखा है इसका प्लूरल बनाना बताना है, और इसका एक हमें फेमिनाइन बताना है, ठीक है। तो दोनों हमें बताना है, एक प्लूरल बताना है, एक फेमिनाइन बनाना है। तो प्रिंस का राजकुमार हो गया, प्रिंस का प्लूरल बताएंगे बाबू तो लिखेंगे प्रिंस, एस लगा देंगे, ये प्लूरल हो गया। फेमिनाइन बताएंगे बाबू तो यहाँ लिखेंगे प्रिंस, और चूंकि इसमें डबल एस लगाना पड़ेगा तो ये हो जाएगा राजकुमारी। प्रिंसेस। बताओ आपको कोई प्रश्न? नो सर, क्लियर हो गया। सर सर, लेकिन प्लीज क्या आप- कैसे हो सकता है सर, प्रोनाउंस सर, इसको प्लीज आप- एक्सप्लेन के बाद क्या लिखा है? एक्सप्लेन अ नॉन, प्रोनाउन एंड अ ग्रुप ऑफ नॉन्स। पूरे ग्रुप को भी वो क्वालिटी बताता है। लिख दिया। डिस्क्राइब नहीं लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है, यहाँ देखो डिस्क्राइब, अब हो गया, ठीक है। हल्ला नहीं करेगा कोई। सर का सर ये आप जो साइड में लिखे उसको भी लिखना है। सर नहीं, ये तो ब्लर दिख रहा है। किसी का प्रश्न था उसको बताया है। बस इसको तो नहीं लिखना है ना। नहीं, सर किंग का क्या होगा? साइड प्लीज सर। सर सर, इनडायरेक्ट और दिख रहा है। डायरेक्ट मतलब ये क्या होता है सर? इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच को स्कूल में पढ़ाया गया था तो सर साइड सब प्लीज। सब बताएंगे बाबू, सब बताएंगे, एकदम धैर्य रखो, कि पैसे, साइड प्लीज। सर एग्जाम में आ रहा है। ठीक है हम तुमको बता देंगे। साइड प्लीज सर। सर साइड। सर साइड। सर मैं एडजेक्टिव से न्यू फेयर स्टार्ट करूंगी। ठीक है बाबू, सर जो आप नीचे में लास्ट में लिखे हैं उससे हमें लिखना है क्या? नहीं कुछ भी बोर्ड पर रहेगा तो बस हवाला करते रहेगा, है ना। एग्जाम्पल देखेंगे बाबू भी हम लोग जानते हैं, जैसे कैसे हम नॉन को क्वालिफाई करेंगे। जैसे लिखेंगे फिजा, फिजा इज अ गर्ल, पिज्जा इज अ गर्ल, गर्ल हमारा नाउन है, और इस नाउन को हमको क्वालिफाई करना है, इसमें कुछ विशेषता बतलाना है। जैसे बोलेंगे कि आई हैव अ कार, हमने कहा आई हैव अ कार। अब कार तो बोल दिया सिंपल सा कि मेरे पास कार है, अभी यहाँ पर कोई एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ पर कोई एडजेक्टिव नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर सिर्फ नाउन है। तो अब क्या करेंगे कि हम उसमें विशेषता लाएंगे, उसमें कुछ क्वालिटी दर्शाएंगे। अब इसमें मतलब गर्ल कौन सा में खाना इसमें का? कौन सा क्वालिटी, इसमें कौन सा क्वालिटी है, तो हम बताएंगे क्या, हम बताएंगे कि पिज्जा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। क्या बताएंगे? ब्यूटीफुल गर्ल। तो ब्यूटीफुल गर्ल यहाँ पर आया, तो ये गर्ल तो हमारा नॉन है, और इस लड़की को क्या किया, इस नॉन के पहले आया एडजेक्टिव्स हमने लिखा। एडजेक्टिव्स आर ऑफन प्लेस्ड बिफोर अ नॉन, ऐसे तो लास्ट में भी आता है, लेकिन हमेशा ऑफन प्रायः क्या होता है कि एडजेक्टिव का काम है कि नॉन के पहले आना और उसका विशेषता बतलाना। तो इस नॉन के पहले ये ब्यूटीफुल जो है एडजेक्टिव आया, और यह एडजेक्टिव इस लड़की का विशेषता बतलाया कि फिजा जो है वो फिजा कैसी लड़की है। तो फिजा कैसी लड़की है? एक सुंदर लड़की है, ठीक है। तो वहां पर ये नाउन के पहले आया एडजेक्टिव। अब जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, तो वो कार कैसा है, तो आई सर ये हैव अ लिखना है कार, क्या? फिजा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। क्या सब लिखना है, सब लिखना। आई हैव अ रेड कार, कार है, नॉन है यहाँ पर, कार है तो कैसा कार है, तो रेड कार है, तो रेड हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, ये इसको क्वालिफाई कर दिया, क्वालिटी बताया कि कार में क्या क्वालिटी है, उसका किस तरह से वो क्वालिफाई कर रहा है। भी हो सकता है ना? हाँ, सर मे आई ड्रिंक वाटर? सर सर ये भी नहीं हो सकता आई सर मे आई ड्रिंक वाटर? सर ये भी आप लिख सकते थे ना सर, आई हैव अ मोस्ट हाँ ये भी हम लिख सकते थे कि दिस इज माई हाउस, दिस इज अ हाउस, ठीक है, दिस इज अ हाउस लिख सकते थे, यह एक घर है, घर हमारा नाउन है। और ये भी लिख सकते थे कि दिस इज माई हाउस, दिस इज माई माई हाउस। न्यू हाउस। अब उसी हाउस के पहले हम माई लगा दिए, तो माई हमारा एडजेक्टिव हो गया, और ये पोसेसिव एडजेक्टिव में आ जाएगा, ठीक है। और सर इसी में हम बोल सकते थे कि दिस इज, इसी माई में बोल सकते थे कि माई हाउस इज, माई हाउस इज इज न्यू। वेरी
Expensive. Sir, today I met a sweet girl. Sir, costly. Very costly. My house is very Sir, side please. Sir, side please. Expensive. Sir, Sir, my expensive. house बता is very big. तो कॉस्टली लिख दीजिए, कॉस्टली। Big. It is of Big, wonderful. 2 stories. House is very big. My house is of Sir, 2 side stories. का तो नहीं ये दिख रहा। स्टोरेज जो होता है ये मंजिल हुआ, Sir, कितना side. तल्ला का होता है। तो ये 2 जो आया, यहाँ पर जो 2 आया, तो ये स्टोरेज के लिए आया और उसके नंबर को बता रहा है। Adjective जो of घर है, तो ये 2 हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। एडजेक्टिव। ठीक है, उसी प्रकार हम आगे आएंगे और भी एग्जाम्पल कि Sir, I met a sweet girl. रमेश इज अ स्टूडेंट। रमेश इज अ स्टूडेंट, यह एक स्टूडेंट है। कैसा स्टूडेंट है तो इसी के बारे में बता रहे। दिख रहा है। बदमाश है ना, कैसा स्टूडेंट है तो बदमाश स्टूडेंट है। तो बोलेंगे कि रमेश इज अ सर, ब्लर दिख रहा है। स्टूडेंट। बदमाश तो क्या होता है? बिगड़ स्टूडेंट, वह एक बदमाश ब्लर दिख बच्चा रहा है। है। ठीक है, एक लास्ट में एक देते हैं बाबू, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। Girl. हाँ, सर, ब्लर दिख रहा है। ब्लर। आप बताइए प्रोनाउन का। यहाँ पर सर आप बताएं प्रोनाउन का भी एडजेक्टिव बताएगा, कैसे बताएगा? तो देखो बताएगा इसे कैसे बताता है, यहाँ देखते हैं। Sir, please side. यू आर ऑनेस्ट, यू आर ऑनेस्ट। ठीक है, ईमानदार हो। ही इज Sir, please side. ही इज हैंडसम, ही इज हैंडसम। तब बताओ कि ये जो ऑनेस्ट आ रहा है, ईमानदार है, और ये जो हैंडसम आ रहा है, ये किसके लिए आ रहा है? तुम्हारे लिए, यू। ये हैंडसम किसके लिए आ रहा है? ही। यानी प्रोनाउन, प्रोनाउन के लिए भी एडजेक्टिव आ रहा है और वहां पर प्रोनाउन का विशेषता बतला रहा है। ये हमारा एडजेक्टिव का डेफिनेशन हुआ और इसका क्वालिटी हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कैसे करते हैं। राइट डाउन बाबू। सर, ब्लर आ रहा है। सब ठीक है बाबू, कुछ ब्लर नहीं आ रहा, हम देख रहे हैं। ज्योति यादव, रोशनी, संकल्प और कार्तिक, आकर्ष श्रीवास्तव और भूमि, ये सभी अपना वीडियोस को ऑन कर लेंगे प्लीज। सर, वीडियो ही नहीं ऑन हो रहा है। आई सेड वंस। सर, 4 नंबर में क्या लिखा है? रमेश इज अ स्टूडेंट, रमेश इज अ बिग स्टूडेंट। सर, चाय पी रही हूँ। Sir, may I drink water? यस बाबू। सर ये आपके पास पेन है, वो मेरे पास भी है। सर, मैं वाटर क्या बाबू, क्या है तुम्हारे पास? सर आपके जैसा। सर, साइड मेरे प्लीज. मेरे ऐसा क्या? पेन। पेन, पेन के बारे में बोल रहे हो? ये कप। यस सर। पेन बोल रहे हो क्या? यस सर, यही मेरे पास यही मेरे पेन। पास एग्जैक्ट यही। वाटर। डायमंड सर, साइड प्लीज. डायमंड लगा हुआ है ना, देखो डायमंड लगा हुआ है। Yes, sir. डायमंड नहीं है वो. रूबी। और डायमंड कितने लगा हुआ करोड़ है, का देखो। लिए हैं? साइड हट दिया. सर, कोहिनूर का टुकड़ा लगा है, कोहिनूर का टुकड़ा. हो गया वो देख ले। सर, कितने करोड़ में दिया? 2 करोड़। Of them सर करोड़ का तो होता है। have done, have you done, erase it, No, sir. let me clean, No, sir. clean बाबू। सर, ही आंसर Okay. 6 नंबर है क्या? हाँ 6 कर लो। सर, वेट अ मिनट। ठीक है, मिटा देना, अब हो गया ना। नो चलिए, सर, तो नहीं लिख पाए हैं वो स्क्रीन शेयर हो जाएगा। मतलब हाँ स्क्रीन क्या चाहिए बाबू? वीक का मतलब बिग मिस बदमाश, जैसे तुम, सर मैं नहीं हूँ। जैसे तुम हो। सर वीक इधर बढ़ गया सर।
सर मिटाइए और मिटाइए, पूरा मिटा के रख दीजिए। नहीं सर एग्जांपल्स मत रेज कीजिए सर, पूरा मिटा दीजिए, मजा आएगा। सर I don't know. सर मिटा दीजिए। सर DIY। सर जो बोल रहा उसी को मिटा दीजिए। सर एक काम करिएगा, जब आराध्या नहीं लिखी होगी तभी मिटा दीजिएगा। तो चुप करना रे। सर DIY है। हाँ तो सबको लिख लेते हैं ना रे। सर सर DIY। DIY क्या ये? पहला आपको, अरे। अब साइलेंट रहे, अब बहुत हल्ला हो गया। पहला टाइप आपको बताया जा रहा है वो टाइप ऑफ एडजेक्टिव में प्रोपर एडजेक्टिव जो कि छोटा है, उसके बाद हम और भी Proper क्लियर करेंगे, एक क्लास सर और लेंगे, खत्म लास्ट में करेंगे। प्रॉपर एडजेक्टिव। हाँ तो सबसे लास्ट पर 10 नंबर तो 10 दे देते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव। सर इसको लिखना पड़ेगा क्या? नहीं प्रॉपर Yes. एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव कुछ नहीं होता बाबू, ये प्रॉपर एडजेक्टिव जो होता है वो प्रॉपर। सर इसे लिखना यस है। यस, अब हाँ लिखना है बाबू। कोई भी चीज। सर 10 नंबर पहले क्यों लिखा था? सर आप ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और ये सब नहीं बताओगे? सब बताएंगे अभी लास्ट। हम लोग जब छत पर जाना चाहते हैं, यदि हमको छत पर on the top of the building we have to climb on, then we start from the bottom, not for the top. नीचे से तो 10वां सीढ़ी से शुरू करेंगे, 10 9 8 7, क्लियर। सर लेकिन उतरना होगा तो उतरेगी तो फिर 1 2 3 4। जाएंगे डाउन से। 5 6 उतरेंगे तो पहले से उतरना अरे पड़ेगा। जब हम लोग बचपन में हम लोग काउंटिंग सीखे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो रिवर्स काउंट भी सीखे हैं, 10 9 8 7 6। बैकवर्ड 5 4 4 3 2। 1 गो। सर लेकिन वापस नीचे क्यों जाना होगा? सर जब नीचे जाना जाना हो तो पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भूसड़ जाते हैं। सर कहना क्या चाहते हो? सर आगे हो गया अब यस सर। क्लियर है। यस सर। प्रॉपर एडजेक्टिव होता है क्या? प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर, प्रॉपर एडजेक्टिव्स सर अगले आर पेज में लिखो या नीचे? मेड अप ऑफ, सर नीचे लिख दूं? नीचे लिखो, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, जो भी प्रॉपर एडजेक्टिव्स होगा ना वो प्रॉपर नाउन से बनेगा। ठीक है, कैसे बनता है वो दिखा देते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर मेड अप ऑफ Adjective are made up of कंप्लीटेड already. देखिए अब कैसे बनता है। जैसे अब हम यहाँ पर प्रॉपर नाउन लिखना चाहते हैं, एग्जांपल में सर बताएंगे। कंट्री का नाम बताओ, प्रॉपर नाउन में तो जो भी कंट्री सर का नाम रूसिया। आएगा। सर रूसिया, इंडिया, इंडिया सर पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका मैक्सिको कनाडा साउथ अफ्रीका, कनाडा सर ऑस्ट्रेलिया, चलिए ठीक है, साइलेंट कॉन्टिनेंट है सर, अफगानिस्तान, साइलेंट। सर अमेरिका कॉन्टिनेंट है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान यूनाइटेड स्टेट्स, सर आइसलैंड, सर इंडोनेशिया, सर आयरलैंड, सर ग्रीस, सर जिम्बाब्वे, सर साइड, फिनलैंड, फ्रांस, सर पोर्तुगल, ब्राजील, सर ब्राजील, सर आप बोल सकते हैं, सर कनाडा, सर स्पेन, सर कनाडा लिखिए कंट्री में प्रॉपर नाउन, सर ब्राजील, सर प्रॉपर पोर्तुगल, नाउन, प्रॉपर नाउन बताएंगे। अर्जेंटीना, यदि प्रॉपर एडजेक्टिव बताना है तो वहाँ के जो लोग हैं, रसिया है तो इसमें बोलेंगे रसियन, तो रसियन क्या हो जाएगा? प्रॉपर एडजेक्टिव। सर पाकिस्तान, पाकिस्तान है तो क्या हो जाएगा? पाकिस्तानी पाकिस्तानी। यस सर, चाइनीज, चाइना है तो सर चाइनीज, चाइनीज। इंडिया है तो सर हिंदी, इंडियन। अलग इंडिया, नेपाल है तो सर नेपाली। नेपाली, होमवर्क क्या रहेगा बाबू? अरे राइट, राइट 10 countries
सर आज का यही होमवर्क। शाहिद सर शाहिद तो कोई भी लिख देगा, मेरे पास तो मैप है सामने ही। सर मैं तो गूगल चिपकाया हुआ है वॉल पे। सर मैं गूगल ऑन करूंगा। वो तो मेरा भी चिपकाया हुआ है। सर सब इजी है, बहुत इजी, अति इजी। And make proper adjectives from them. ठीक है, 10 कंट्री का नाम लिखना है और उसे उस कंट्री को प्रॉपर एडजेक्टिव में बदलना है। ओके सर। सर DIY है, DIY है। बस इतना। सर और भी मैं लिख दे रहा हूँ अभी छुट्टी दे हुआ है बाबू। बाय सर। कंट्री के। सर हो तो गया अब। अभी पढ़ाए हैं क्या? सर इतना चलिए नेक्स्ट अभी पढ़ा रहे हैं। सर 1 मिनट। हम वर्क लिखे। लिखो। सर ब्लर दिख रहा है। ठीक है, कुछ ब्लर नहीं है। सर दिख रहा है, होमवर्क अच्छे से नहीं दिख रहा है। सर होमवर्क लिख लो। राइट। सर जो आपने एग्जाम्पल दिया हुआ है वो भी लिख सकते हैं। नहीं, हम एग्जांपल अभी देंगे। ठीक है, सर ये होमवर्क नहीं- मत मिटाइएगा प्लीज। तो फिर कहाँ से? सर मिटा दीजिए, होमवर्क हो गया। क्योंकि फिर वो क्या करेगा, अलग अलग लिख देगा। हम 10 कंट्री का नाम ग्रुप देंगे में और भेज दिए बाबू, ग्रुप में सेंड कर दिए, वहां से लिख लीजिएगा। यस सर। बनाना आपको है, क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। ठीक है, सर सर ये होमवर्क। होमवर्क होगा। हाँ हाँ, ये 10 जो है ना, ये 10 हम दे रहे हैं। हाँ, होमवर्क में ऑस्ट्रेलिया। इजी सर, वेरी इजी। सर इंडिया तो जरूर देना। इसको क्या करना है? सर इंडिया दे दीजिए सर। सर वो तो हो गया। सर इसको सर दे दो। प्रॉपर नाउन में चेंज करना है। सर अमेरिका। प्रॉपर नाउन लिखा हुआ है यहाँ पर। सर प्रॉपर सर नाउन लिखा हुआ अमेरिका। है। इंडिया दे दो। सर अमेरिका। सर अमेरिका लिख भी दिया। बहुत हल्ला कर रहे हो। सर इंडिया। अमेरिका लिख भी दिया। सर पोर्तुगाल। इंडिया सर पोर्तुगाल। 2 into L plus B into height. सर पोर्तुगाल। सर यही 10 कंट्री रहेगा। हाँ, यही जो हम दे रहे हैं। सर इसको प्रॉपर सर नाउन इंडिया दे दो। में कन्वर्ट करना है। सर इंडिया दे दीजिए। 5 नंबर में का लिखे हैं? सुनो सर ना, प्लीज कंट्री पोर्तुगाल दे कंट्रीज दीजिए। है ना, पोर्तुगाल। स्टेट भी हो सकता है ना। ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं। 5 कंट्री हो गया तो स्टेट भी हो सकता है उसमें। वो तो स्टेट जैसे हम बोलेंगे बिहार, बिहारी। तो बिहार का बिहारी। adjective क्या होगा? बिहारी। सर स्विट्जरलैंड लिख दीजिए। हम सर जैसे बोलेंगे प्लीज पोर्तुगाल दे दीजिए। वेस्ट बंगाल। बिहार बिहारी। सर सर इसको प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट करना है। हे अरे भगवान। ये सभी सर प्रॉपर मध्य नाउन होते प्रदेश ही का हैं। सर मध्य प्रदेश। क्या गजब, क्या मेक प्रॉपर एडजेक्टिव से दिया हुआ। सर प्रॉपर नाउन यूरोप ऑलरेडी। दे दिया। कोई भी कंट्री की या सब कंटिनेंट का नाम क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। सर मैं पोर्तुगाल लिख दे रहा हूँ। नहीं लिखना है। आप अर्जेंटीना लिख दीजिए। तो वो लिख भी नहीं होगा, बोल रहा था ना बहुत लिखता हूँ। मैक्सिको। सर इंडिया। थाईलैंड। सर इंडिया लिख दो, अपना कंट्री नहीं लिखते आप। यस सर। सर इंडिया सर पोर्तुगाल लिखिए। कंट्री है। सर पोर्तुगाल लिख दीजिए ना। अर्जेंटीना। सर पीपीए करके क्या लिख लिए? हाँ हाँ। लिख लिया बाबू। इजिप्ट। वाओ। सर यूनाइटेड किंगडम।
हड़प्पन सिविलाइजेशन सर अफ्रीका कंट्री नहीं है, कॉन्टिनेंट है। सर जिम्बाब्वे। सर साइड। सर साइड। हाँ लिखो ना। सर प्लीज लिख दीजिए पोर्तुगाल। पोर्तुगाल सर। सर यूनाइटेड किंगडम। हो गया। सर पोर्तुगाल लास्ट। नो सर। नहीं सर, सर इंडिया, पुर्तगाल के पीछे क्यों है? सर इंडिया, पुर्तगाल सर यूनाइटेड सर किंगडम। इंडिया, यूनाइटेड पुर्तगाल जगह सर 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 इंडिया सर लिख पोर्तुगाल। दीजिए सर सर, अपना यूनाइटेड कंट्री, किंगडम। सर आइलैंड अपना कंट्री है सर। इंडिया दिया ना एग्जांपल में। सर पुर्तगाल क्या है? यस सर पोर्तुगाल। क्लियर वो? पोर्ट यस सर। चलिए इसको अब सेंड कर दिया जाए। हड़प्पा क्या है? हड़प्पा सिविलाइजेशन था। हड़प्पा पहले पुराने ओल्ड समय में, एंशिएंट टाइम में हड़प्पा एक जगह था। चटाड़ो भी है, ये हमारे सिलेबस हाँ। में है। ठीक है वो? हड़प्पन Indus सिविलाइजेशन आप लोग बना के भेज देना वो। ग्रीस, पर्सिया, रोम। थैंक यू सर। बाय सर बाय सर। बाय सर। होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन बाबू, होल्ड ऑन होल्ड ऑन। सर मैंने लिख बाय होल्ड बाय सर बाय सर बाय सर। सर अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है। सर मैं जाऊं। फिर अपना है बोलिए। सर मैं जाऊं। ठीक है, जाइए बाबू। तो रिजल्ट आया। बाय सर। बाय बाय बाबू। बाय सर। बाय सर। सर लीक मत कीजिएगा, मैं लिख रहा हूँ। अच्छा लिख सर ये काला काला क्या हो गया? क्या काला काला बाबू? साइड में टैप कर दे हो जाएगा। सही हो गया। यस सर। सर सिंसियर 25 डिग्री सेल्सियस। सनी।